دودیوں سمیر کا بہت ہی حسین ہے، چینل سے جن کے پھیلتا خدا کا یہ دین ہے، چینل سے جن کے پھیلتا خدا کا یہ دین ہے۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، إمام المشرقين وإمام المغربين، رسولا مكيا مدنيا هاشميا قريشيا مكروبيا وعربيا بيحانيا، نبيا تقيا نبيا وليا قربيا شمسيا قمريا بشيرا نذيرا، وصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. ادب سے انسان ہے، ادب سے انسان ہے، جو ادب نہ سیکھے وہ حیوان ہے. اور ایک شیخ مولانا اسماعیل صاحب نے یہ جگہ یوں اشارہ فرمایا ہے، بروں کی صحبت میں مت بیٹھو، اس کا ہے انجام کرو. بروں کی صحبت میں مت بیٹھو، اس کا ہے انجام کرو. بد نہ بنے تو بد کیا ہے، بد اچھا انجام کرو. مولانا بھائی دوستو، الحمدللہ ہر جمعہ کو کسی نہ کسی ایسے مضمون اور ایسے ٹاپک پر بات کی جاتی ہے جو ہمارے معاشرے میں اصلاحی کی لائن سے، درستگی کی لائن سے، راہ راست کی لائن سے بہت ضروری ہوتی ہے. اچھے اچھے واقعات سنا دینا، اچھی اچھی کہانیاں سنا دینا بڑی آسان ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ صحیح بات لوگوں تک پہنچے، صحیح رہنمائی ہو، یہ اثر ہے. ورنہ اونچی اونچی آواز میں اچھے اچھے واقعات سنا دینا یہ بڑی آسان بات ہے. ہماری اسی مسجد میں مولانا ابوالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ مولانا شعیب صاحب تشریف لائے. یہی ان کا بیان ہوا تھا جامع مسجد میں. مغرب کے بعد ان کا بیان ہوا، تقریباً 22-25 منٹ انہوں نے بات کی، اور اس 25 منٹ کے اندر انہوں نے کھانے کی سنتوں کو بیان کیا. اب آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ہمیں اتنی دور سے آئے کا بیان سننے کے اور پڑھنے کی سنتیں بیان. حالانکہ اصل یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور سیرت کو بیان کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیے ہر پہلو کے اعتبار سے ہدایت ہے، ہر اعتبار سے، ہر روز کے اعتبار سے ہمارے آقا سرکار کو صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستے دکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آج کل
اس کا مطالعہ کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو سننا ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا ہے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں تو کوئی پہلو ایسا نہیں ملے گا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہو. ہر اعتبار سے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہدایتیں ملیں. آپ گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ ہیں تو بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہو گے، یہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملی. آپ اپنی باہر کی زندگی میں ہیں تو باہر کیسے زندگی گزارو گے، لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہوگا، لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے ہوں گے، آپ کی معاشرت کیسے ہوگی، آپ کے اخلاق کیسے ہوں گے، یہ ساری باتیں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملی. اور ہم کاروبار میں ہیں تو کاروبار کی زندگی ہماری کیسی ہونی چاہیے، ہمارا کیریئر کیسا ہونا چاہیے، یہ سارے طریقے ہمارے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں مل جائے گی. لیکن سیرت کو اٹھا کر تو دیکھیں، سیرت کا کوئی اٹھانا تو کرے. ایک بات میں نے عجیب پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی. ڈاکٹر عبید اللہ صاحب، ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب، ایک کتاب ہے خطبات بہاولپور. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے وقت صلح پڑھی اور بہت تک صلح پڑھی. کافروں نے جو شرطیں رکھی منظور ہے، کوئی مسلمان ہو جائے اس کو آپ واپس کرو گے منظور ہے. کوئی کافر مدینہ میں واپس ہو جائے، واپس جائے اسلام سے پکڑ جائے، مرتد ہو جائے تو اس کافر کو، یعنی جو مسلمان کا اسلام دھرم اس میں پریورتن کر دیا تو آپ اس کو واپس نہیں دو گے منظور ہے. آپ اس سال حج نہیں کریں گے، عمرہ نہیں کریں گے. حالانکہ ذرا سوچنے کی بات ہے، ابھی ہم ذرا چل رہا ہے عمرہ میں تو بہت ساری جگہوں پر گاڑی کھڑی نہیں رہتی، مقامات زیارت تھے. مان لو طائف کے اندر ہے، کورونا کے بعد طائف کے جتنی بھی مسجد علی ہے، مسجد رسول ہے، جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگایا تھا اور سانس دیا تھا، تکتر نہیں تھی کیونکہ کافروں نے تقریباً 2.5-3 کلومیٹر پتھر مارے تھے. آوازیں کیسی تھی، برا بھلا کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ گئے اور وہاں ذرا سستا لیے، ذرا آرام کیا. وہ جگہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائی تھی، اس سے پہلے گئے تو کھلا، لیکن اس مرتبہ میں وہ سفر ہے. وہ جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور بے ہوش ہو گئے کیونکہ کافروں نے مارا ہی اتنا، کافروں نے اتنا ستایا، پتھر مارے، لوہان ہوئے، جوتیاں مبارک لہو سے بھر گئی، خون سے بھر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کا ہر حصہ زخم آلود ہو گیا، زخم والا ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر جس جگہ گئے وہ جگہ بھی آج بھی موجود ہے. پھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے کندھے پر ان کو اٹھایا اور لے کر بھاگے، دوڑ پڑے کہ میرے آقا کو مزید تکلیف نہ ہو. وہ جگہ بھی موجود ہے لیکن بند ہے. تو یہ جگہ جب بند ہوتی تھی ہمیں بہت دکھ ہوتا تھا، اس لیے دور آئے اور یہ جگہ دیکھنے کو ملے، وہاں نماز پڑھنے کو ملے تو بڑا درد ہوتا تھا، بڑی دکھ ہوتی. اب ذرا سوچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر مکہ آئے اور مکہ سے ذرا دوری پر گئے حدیبیہ کے مقام پر، اور کافی لوگ کہیں کہ تم اگرچہ عمرہ کے لیے آئے ہو لیکن اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، اس سال تمہیں مکہ میں داخل نہیں ہونا، مکہ میں تمہیں داخل نہیں ہونا. اب ذرا سوچیں آدمی پر کتنی گزرتی ہو. ہم مکہ سے جاتے تھے طائف، مکہ سے طائف ہے
तकरीबन 130 किलोमीटर की दूरी पर हो। तो वहां जाकर पता चला बंद है, तो हमारे मुंह पर तो गुरुजी को वो आदमी नफ्सों में नहीं पता सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से 450 किलोमीटर दूर से चले, मक्का के करीब आ गए, जरा ही दूरी 22 किलोमीटर की दूरी पर काबा होना है, वहां जाकर नमाज, वहां जाकर उम्रा करना है। लेकिन काफिरों ने शर्त रखी कि आपको इस साल उम्रा नहीं करने देंगे, मंजूर आइंदा साल उम्रा पढ़ाने आओगे, कोई अभियान साथ में होगा, मंजूर 10 साल तक हमारी जंग नहीं होगी, मंजूर सब मंजूर। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सारी शर्तें मंजूर करके सुने, बड़ी तब पर सुने। सहाबा किराम की समझ में नहीं आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर कहाँ है और निशान कहाँ है, कि नजर कहीं और थी, निशान कहीं और था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये सारी शर्तें देखी तो गश्त है। कभी हज़रत अबू बकर के पास जाते थे और कहते थे कि अबू बकर, क्या हम मुसलमान नहीं? हम मुसलमान हैं। क्या इस्लाम सच्चा मजहब नहीं है? सच्चा मजहब है। बिजली तब तक सुने करना हज़रत अबू बकर इधर जा इतना तब तक अल्लाह के नबी ने कहा कि अपना सर उठाओ, उमड़ा तो नहीं होगा, सर उठाओ। कम से कम एक चीज तो आप कर सकते हैं कि उमड़ा में जाते हैं तो 3 चीजें होती हैं, तवाफ करना, साई करना और सर उठाना। ये 3 चीजें हो गई, उमड़ा होगा। तो हम तवाफ नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने शर्त लगाई है, साई नहीं कर सकते, सफा मरवा शर्त लगाई, लेकिन हलक तो करा सकते हैं। कम से कम उमरा के साथ हमारी खुशबू मुशाहियत हो जाएगी। सर बता दो, कोई साहब नहीं आती, कोई साहब नहीं आती, इतनी कम कर सकते। सुन, हम हथियार लेकर आए, बहादुर जंग करें, और यही काम था साहब के नाम पर आई मोहम्मद अली आगे बढ़े, आई मोहम्मद अब आगे बढ़े, तुम्हारे साथ है। हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की जैसे नहीं है कि इन्होंने कहा था कि क्या ही मूसा तुम और तुम्हारे रब जाकर लड़ो, हम तो यहाँ बैठे हैं। हमें नहीं कहिए आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चलिए, हम आपके आगे भी लड़ेंगे, आपके पीछे भी लड़ेंगे, आपके दाएं भी लड़ेंगे, बाएं भी लड़ेंगे, आपको नाश नहीं करने देंगे जब तक हमारी जान है, जान में जान है, जंग करते रहेंगे। और नंबर में तो हमारी औलाद को कहकर करेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जिस्म के ऊपर एक भी आंच आनी नहीं चाहिए। हमारी औलाद जब तक जिंदा है तब तक तुम महफूज रहोगे, हम तुम्हारा साथ देंगे, कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। जहां तुम्हारा पसीना गिरा है वहां हमारा खून के, लेकिन हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। यही काम था साहब। तो साहब जोश मुझे सम्मान करता हुआ मैंने सलाह दी, मशवरा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमाना उठा आदमी को बुलाया और कहा कि मेरा सर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर बुला दिया। जब सर बुला दिया तो साहब अब कोई रास्ता, क्योंकि पहले तबाह होता है, फिर सही होती है, फिर सर बुलाना होगा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर ही बुला दिया है तो आगे तबाह और सही का तो सवाल ही नहीं था। ये तो एक तरतीब होगी, तरतीब से साथ चलना पड़ता है। तरतीब भी बदल जाए तो फिर दबाता, तो एक तरतीब होगी। तो ये तरतीब खत्म हो गई, अब बात खत्म, सारे साहब बैठे और अपना सर बुला। अब मौलाना मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि सीरत के पहलू पर अगर आप नजर करें और हमारे उलमा किराम ने जो दर्स सीरत बयान किया है और उलमा किराम ने जो दर्स सीरत के बारे में किताबें लिखी है, अगर हम इस पर नजर करें तो हम जिंदगी के हर पहलू के ऊपर अमल कर सकते हैं, हर पहलू की हिकमत हम जान सकते हैं कि हम
मकाम पर आप क्या हिम्मत और इख्तियार करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शर्तें मंजूर की, उसमें भी ये मालूम हो रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर के सुने। ये डर नहीं था, ये हिम्मत थी। क्या हिम्मत? मौलाना हमीदुल्लाह खान साहब ने फरमाया कि इसमें हिम्मत ये थी कि मदीना के अंदर काफिर, मदीना के अंदर यहूदी लोग थे, मक्का के अंदर काफिर लोग थे। मदीना के अंदर यहूदी कभी भी अपना साथ देने वाले नहीं थे, मक्का के लोग रिश्तेदार थे। रिश्ते का खून कभी न कभी रंग लाता है, कभी न कभी जोश मारता है, उसके अंदर रहम और हमदर्दी जरूर होती है, शायद होगा। यहाँ से यहूदी लोग खत लिखते थे, चिट्ठियां लिखते थे बड़ी बड़ी, आ जाओ तो मौका अच्छा है, तो इधर से आना, हम पीछे से आएंगे, दरमियान में मुसलमानों को पीस देंगे, मदीना को तबाह कर देंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे। ये सारी चीजें वो, और यहाँ से जाते थे, यहाँ से जाते थे और यहूदी निकलते थे मदीना से और मक्का जाकर काफिरों को भड़काते थे, वो जंग के लिए तैयार होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि एक मरतबा सुलह करके कुफारों को तोड़ दिया, यहूदियों से कुफारों को तोड़ दिया। जब कुफार टूट जाएंगे तो ये तो हमारे रिश्तेदार कभी भी हमारे हाथ में नहीं, लेकिन एक मरतबा यहूदी टूट गए तो इनका रास्ता आसान हो गया। यहाँ काफिरों से सुलह की, उधर गज़वा मुश्तरक किया, गज़वा बनु नज़ीर किया, गज़वा बनु कैनुका किया और यहूदियों को साफ कर दिया। जो कि यहाँ सुलह की हुई थी और सब एग्रीमेंट किया हुआ था कि तुम जंग नहीं करोगे हमारे साथ, तो वो तो आ ही नहीं सकते थे। तो एक तरफ से अपना रास्ता साफ करके दूसरी तरफ से यहूदियों का सफाई कर। ये जब यहूदी लोग यहाँ से निकले, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जज़ीरा अरब से यहूदियों को निकाल दिया जाए। तब सहाबा किराम का दिमाग ठिकाने आया और तब सहाबा किराम को ये बात मालूम हुई कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुलह थी वो बिल्कुल सही थी। ये एक वजह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पहुंचे, मक्का फतेह हुआ, काबतुल्लाह पर कब्जा हुआ, तो काफिरों का ये गुमान था कि काबतुल्लाह पर किसी बुरे आदमी का कब्जा नहीं हो सकता, किसी गलत आदमी का कब्जा नहीं हो सकता। काबतुल्लाह हमेशा अच्छे लोगों के याद में रह सकता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह पर कब्जा किया तो इन लोगों को एक अजब इन लोगों के दचका हुआ, दिल में एक बात पड़ी, अल्लाह ताला ने उनके दिल में एक बात डाली कि मोहम्मद अरबी सही आदमी है, इसलिए अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह शरीफ की बात को उसके हाथ में दी है। सारे मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और ये सारी सोचों के साथ सब मुसलमान तो अपने ही थे, वो बात में अपने हो गए, लेकिन वो तो पढ़ाई थी, आज भी अपने थे, आज भी वो अपने नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं मुसलमानों को नुकसान पहुंचाई जाती है, तकलीफें पहुंचाई जाती है, हमले किए जाते हैं, सारी चीजों के अंदर यही होगी मुनव्वस होती है। आज भी का तासुब बाकी है और हो सकता है शायद क़यामत तक का तासुब बाकी है। और दज्जाल की जो आएगा वो भी यहूदी होगा, दज्जाल आएगा वो भी यहूदी होगा और पूरी दुनिया पर तूफान मचाएगा और खास करके हमारे इस्लामिया और मुसलमानों पर बहुत ज्यादा करेगा। बट मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ, मैं तो आपके सामने एक बात लेकर बैठा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमें हर चीज जानने को मिलती है और हमारी इस मस्जिद के अंदर जामा मस्जिद में बैठकर आपको यही कुछ बातें बताई जाती है कि हमारे माशरे में क्या क्या कोताही है, इन कोताहियों को खत्म किया जाए, क्या क्या बदअमालियां है उन बदअमालियों को खत्म किया जाए। कुछ अखलाक की लाइन से होती है, जो कोताही हमारी कुछ कोताही होती है वो अखलाक की लाइन से होती है, कुछ बातें होती है वो गुनाह की लाइन से होती है। अखलाक की लाइन से भी दोस्ती हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए मौलाना इलियास साहब ने 6 नंबर बताए, 6 नंबर और 6 नंबर में से 5वां नंबर जो बताया इकराम मुस्लिम, 5वां नंबर जो बताया इकराम मुस्लिम है। हजरत मौलाना ने जो ये 6 नंबर बयान किए वो पूरा दीन नहीं है, लेकिन उस पर अमल करने की वजह से इंशाअल्लाह इंसान दीनी शौबे के बहुत सारे शौबों पर काम करने वाला हो जाता है, बहुत सारे दीन पर काम करने वाला हो जाता है।
بہت سارے دین کا اس کو سیکھنے کا ایک دائیا اور ایک طلب پیدا ہو جاتی ہے۔ بہرحال اکرام مسلم ہمارے معاشرے سے مفقود ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا احترام، یہ چیزیں ہمارے اندر سے نکلتی جا رہی ہے۔ آپ ذرا سمجھ لیجیے، لاک ڈاؤن کے بعد کے حالات کو دیکھیں، لاک ڈاؤن کے بعد کے چیزوں کو دیکھیں، لوگوں کے اخلاق کو دیکھیں، بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں۔ لاک ڈاؤن کے بعد بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں، آپ دیکھیں حالات بگڑتے جا رہے ہیں، اور بعض جگہوں پر تو ایسے حالات ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ جو تاتاری نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا اور مسلمانوں پر جن چیزوں کی وجہ سے حملہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کفاروں کو مسلط کیا تھا جن گناہوں کی وجہ سے، جن بدعمالیوں کی وجہ سے، جن اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی جگہ سے نکالنے سے کافروں کو اللہ نے مسلط کیا تھا، وہی حالات ہم ہمارے معاشرے میں آج کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہمارے اندر سے ختم کرنا، اکرام مسلم، تمام مسلمان بھائیوں کا اکرام کرنا، احترام کرنا، عزت کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ سدائے بازگشت ہے، جیسا بولو گے ویسا سنو گے، اچھا بولو گے تو اچھا سنو گے، برا بولو گے تو برا سنو گے۔ سدائے بازگشت ایک آواز ہم لگاتے ہیں تو بعض پہاڑ ایسے ہوتے ہیں، بعض دہاڑے جس کو کوئرہ کہتے ہیں، بعض دہاڑے ایسے ہوتے ہیں جس میں سے ڈبل آواز آتی ہے۔ یہاں سے آواز کرتے ہیں تو وہاں سے آواز ریٹرن جاتی ہے، لوٹ کر آتی ہے۔ بولو کہ اللہ تو سامنے سے آواز آئی گی اللہ اللہ اللہ، محمد تو سامنے سے آواز آئے گی محمد محمد محمد۔ تو جیسا بولتے ہیں ویسی آواز آتی ہے، اچھا بولتے ہیں تو اچھی آواز آتی ہے، اور برا بولتے ہیں تو بری آواز آتی ہے۔ جیسا وہ سدائے بازگشت ہے، جیسا بولو گے ویسا سنو گے، سامنے والے کی عزت کرو گے تو عزت پاؤ گے، سامنے والے کو ذلیل کرو گے تو ذلت پاؤ گے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم سامنے والے کو ذلیل کرو اور اس سے تمہیں عزت بھی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ سامنے والے سے اگر عزت چاہتے ہو تو ہمیں اس کی عزت کرنی پڑے گی۔ جانور بھی ہوتا ہے وہ بھی عزت کو مانگتا ہے، ایک بھلکی ہوتا ہے وہ بھی عزت کو چاہتا ہے، اس کے اندر بھی عزت ایک نفس ہوتی ہے۔ میں نے ایک واقعہ کہیں پڑھا تھا کہ ایک گائے کو کام کرنے والے نے، چارہ چرانے والے نوکر نے ایک تھپڑ مار دیا۔ اب وہ گائے نہیں رہا، اس کے سامنے گھاس رکھتے ہیں، پھل رکھتے ہیں، وہ گائے کھانے کا ہی نہیں کھا رہا، چارہ ہی نہیں چل رہی۔ کیا بات ہوئی؟ کھانا ہی نہیں کھا رہی ہے، ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، بس گمسم کھڑا ہے، گمسم کھڑی ہے گائے، کیوں نہیں کھا رہی؟ بڑے لوگوں کو بلایا کہ دیکھو کیا ہے، ڈاکٹروں کو بلایا کہ دیکھو کیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک بڑا ہے، اس نے اس کی حالت دیکھی، پوچھا کہ کسی نے اس کو مارا تھا؟ تو سب رشتے داروں سے پوچھا، گھر والوں سے پوچھا کہ اس نے مارا تھا اس کو کوئی پریشان کیا تھا، اس کو کچھ کیا تھا؟ تو جو ڈاکٹر تھا، چارہ ڈالنے والا، اس سے پوچھا گیا کہ تم نے تو کچھ نہیں کیا؟ کہا کہ ہاں میں نے اس کو مار دیا، میں نے اس کو مار دیا۔ اچھا یہی ہے، اس کی وجہ سے عزت نفس جانور نے مجھے مارا، مجھے ذلیل کیا، مجھے مارا، عزت نفس اس کے اندر۔ اب اس بوڑھے نے کہا کہ اس گائے کے سامنے اس کو تماچا ہو، گائے کے سامنے اس کو تماچا ہو، پھر اس کو چارہ ڈالا، وہ گائے کھانے لگی۔ تو یہ جانوروں کے اندر بھی عزت نفس ہوتی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم عزت چاہتے ہیں لوگوں سے، تو ہمیں دوسروں کی عزت کرنی پڑے گی۔ ہم لوگوں کے ساتھ غصہ سے بات کریں، تانا تشریح کریں، گالی گلوچ کریں، لڑیں۔ ہماری بھاشا میں کہتے ہیں ہر بات میں پاکڑیاں بھی۔ کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں، ہر بات پر جھگڑا، تو اڑو تو اڑو، جیسے ہوئے تو بڑا بڑو کہ ہوتا کام ہو، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ اسلام، یہ مسلمان کی شان ہے۔ یہ مسلمان ہمیشہ گرم ہوتا ہے، مسلمان ہمیشہ گرم ہوتا ہے، جھگڑنے کی بات تو اس کے اندر ہوتی ہے، بس پتہ نہیں آپ لوگ کیسے نہ معلوم کیسا غصہ اس کے اندر ہوتے ہیں، باتوں پر جھگڑنے لگتے ہیں، لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔
किसी से दुश्मनी हो गई, इस दुश्मनी को पूरा करने के लिए न मालूम कैसे कैसे वो हटकंडे इस्तेमाल करता है, न मालूम कैसे कैसे वो प्लानिंग करता है। ये हम देख रहे हैं, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, इस स्टेज से मैं सारी बातें बोल नहीं सकता, लेकिन वो सारी बातें आप जानते हैं, वो सारी बातें आप जानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोटों पर शफकत करो, बड़ों का एहतराम करो। अब छोटों पर शफकत हमारे माशरे से निकलती जा रही है। हमारे आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु छोटे बच्चे हैं, आकर गोद में बैठे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमने लगे। एक सहाबी सामने बैठे थे, कहने लगे, नबी अल्लाह मेरे 10 बेटे हैं, कभी भी मेरे बच्चों को नहीं चूमो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका दिल पत्थर हो गया हो वो बच्चों से क्या प्यार करेगा? लोगों पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर सवार है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़ा बनकर पूरे घर में घूम रहे हैं। एक साहबी ने कहा कि कितना अच्छा है, कितनी अच्छी सवारी है, कितनी अच्छी सवारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झट से फरमाया कि सवारी बहुत अच्छा है। क्या फरमाया? सवारी बहुत अच्छा है। बच्चों से प्यार, बच्चों से मोहब्बत। सहाबी ने नबी की तारीफ की, नबी ने बच्चे की तारीफ की। एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा के घर गए, हजरत हसन ने देखा, दौड़ कर आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद में उठाया और कहने लगे, ऐ अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ और जो इनसे मोहब्बत करे उससे मोहब्बत। बच्चों की मोहब्बत। एक सहाबी का बच्चा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पेशाब करने लगा, सहाबी को एहसास हो गया कि बच्चा पेशाब कर रहा है, दौड़ कर आए, अल्लाह के नबी ने कहा, पूरी पेशाब इसको करने उसको फारिग होने दो, जब तक वो बच्चा फारिग नहीं हो गया तब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बच्चों से शफकत, बच्चों से मोहब्बत। तो हमारे दाऊद तबलीग में हदीस पाक में है, इकराम मुस्लिम, और उसमें सबसे पहले जो बयान करते हैं, सबसे पहले जो बयान करते हैं, छोटों पर शफकत, बड़ों का एहतराम, बड़ों का इकराम और बड़ों की आदरी करो। इसमें बहुत सारी बातें आती हैं, इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जानवरों पर रहम करने वाले हैं। इंसान तो बहुत बड़ी बात है, इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जानवरों पर रहम करने वाले थे। एक जगह से गुजर रहे थे कि एक हिरनी, एक आवाज आई, या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई इंसान है, आवाज कहां से आ रही है? फिर आवाज आई, या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर किया तो देखा कि ये हिरनी जो है, ये हिरन जो है, वो मुझे आवाज करीब गए, पूछा क्या बात है? कहे नबी अल्लाह तुम्हारे एक सहाबी ने मुझे पकड़ लिया, यहाँ बढ़ता है, मेरे बच्चे फला पहाड़ में छोटे छोटे, कोई खिलाने वाला नहीं, मेरा जी चाहता है पढ़ने से पहले एक मरतबा उसको ढूंढ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी को बुलाया, सहाबी को भी नहीं बोला। अल्लाह के नबी ने उसको उस हिरनी से कहा, फिर तो अल्लाह पूरा न करे तो फिर क्या होगा? वो तो चली जाएगी, फिर आएगी नहीं। तो क्या कहना, अल्लाह के नबी पक्का वाला सच बोलती हूँ, अगर मैं वापस ना आऊँ तो जिस तरह अल्लाह इंसानों को जहन्नम में डालेगा, अल्लाह मुझे जहन्नम। अब ये हिरनी गई, वापस आई अपने बच्चों को दूध पिलाकर। ये हिरनी से सच्चाई सीखनी चाहिए, वादा पक्का होना चाहिए। जानवरों से हम सीखें कि कितना वादे के पक्के हुआ करते थे। देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मालूम है मेरे गले के ऊपर छुरी मिलने वाली है, चंद मिनटों की बात है, चंद घंटों की बात है, फिर मेरे गले पर छुरी चलेगी और मुझे तरफोगी और इस दुनिया से मुझसे हो जाऊंगी। ये लोग मेरे कबाब बनाकर खाएंगे, उसको मालूम है, लेकिन वो दौड़ कर वापस आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाता सहाबी को बुलाया और कहा कि ये हिरनी मुझे दिखाए, मुझे ये हिरनी दे दे। अल्लाह के नबी से कहने लगे, आए नबीउल्लाह, सहाबी कहने, आए नबीउल्लाह, हम तो तुम्हारे ऊपर जान निछावर करते हैं, ये हिरनी तो क्या? आप बोलिए कोई बात नहीं। अल्लाह के नबी ने उसको छोड़ा तो कहा कि जाओ अपने बच्चों के पास जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका सरकार द्वारा जानवरों पर रहम करते, जानवरों पर रहम करने वाले। हम इंसानों पर क्यों रहम करें? अपने बच्चों पर क्यों रहम करें?
साल गुजार देते हैं, लेकिन बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए मालूम नहीं। कभी उलमा किराम के पास जाकर पूछा ही नहीं, कभी उलमा किराम को पूछे कि हमारे बच्चों की तरबियत कैसे करें। बच्चा पैदा हुआ है तो हम किस तरह पहले दिन हम किस तरह गुजारें, पहले दिन के बारे में क्या क्या अमल है, कुछ नहीं। हालांकि हदीस से बात में आता है जो आदमी बच्चा पैदा होने के बाद 3 मरतबा 7 मरतबा कहेगा अल-बर्रु 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 और दम कर देगा, बालिग होने तक तोहरी बीमारी को मुब्तला नहीं होगा। कितनी देर लगी? 7 मरतबा पढ़ने में 7 सेकंड नहीं। और मुफ्ती महमूद पाटोली हमारे पीर मुर्शिद से हमने सुना कि जो आदमी बच्चा पैदा होने के बाद अजान पढ़े, अजान के बाद उसके कान के अंदर कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, वो औलाद कभी भी ज़िना होने में और बदकारी में मुब्तला नहीं होगा। कभी पूछा उलमा किराम से कि क्या अमल है? पूछ कभी सोचा ही नहीं, सोचे तभी पूछे, कभी तारीफ पैदा ही हो। तो ये सारी चीजें पूछने की और सुनने की और सीखने की और सिखाने की है। हमारी जिंदगी में ये चीजों को लाने का है कि बच्चों पर शफकत जरूर करना है, लेकिन कैसी शफकत कि बच्चे बिगड़ न जाए। ये मैंने शफकत के वाक़या सुना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे तो क्या जानवरों पर भी शफकत करते हैं। एक वाक़या मैं सुबह तक एक कार्ड कर दूं, आइंदा मैं बड़ों का इनाम बच्चों पर शफकत कैसे करें और बड़ों का इनाम क्या है उस पर मैं इंशाअल्लाह पर बयान करूंगा, क्योंकि कुछ हालात मैंने देखे तो मुझे लगा कि इस चीजों पर भी बयान होना चाहिए। बहुत सारी चीजों पर बयान होता है, बहुत सारे टॉपिक पर बयान होते हैं। इस टॉपिक को बहुत कम दिया जाता है कि बड़ों का इनाम उलमा किराम की कदर। बड़ा एक वाक़या में सुबह तकीन का 2-3 मिनट में आपके साथ अर्ज कर दूं, खतरा पर वक्त खत्म होता है, इंशाअल्लाह उस टाइम पर अपना बयान इंशाअल्लाह खत्म हो जाए। सुबह तकीन जवानी के आलम में एक मरतबा जन्म है, उसने हिरनी का बच्चा गोद में लिया, अपने बहन की तरफ जा रहा। सुबह तकीन गुलाम था, अलग तकीन ने उसको अपनी बेटी दी थी, बाद में उसको सल्तनत दी। 20 साल तक उसने गजनी के ऊपर हुकूमत की, पूरे इलाके के ऊपर, और बहुत ही मजबूत बादशाह। उसका बेटा महमूद गजनी वो उससे भी मजबूत था। बहरहाल वो लेकर जा रहा था हिरनी को, थोड़ी देर के बाद पीछे मुड़ कर देखा तो एक हिरनी की मां पीछे बच्चे की मां पीछे गोया वो सवाल कर रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसके पीछे को दौड़ते ही जा रही थी। गोया वो सवाल कर रही थी इतनी जोर की सारी से कि मेरा बच्चा छोड़ो, मैं अपने बच्चे के बगैर रह नहीं सकती, ये मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे को छोड़ो। माँ ऐसी होती है, माँ ऐसी हुआ करती है, चाहे वो इंसान की माँ हो चाहे वो जानवर की हो। क्या वो ज़माने हाल से कह रही थी मेरे बच्चे को छोड़ो, मेरे बच्चे के बगैर नहीं रह सकती, पीछे जा रहा। सुबह तकीन को रहना गया कि माँ परेशान हो रही, चलो छोड़ देते, उसे छोड़ दिया। बच्चा अपनी माँ के पास चला गया, माँ बच्चे को लेकर चली गई, लेकिन जैसे जैसे वो जा रही थी पीछे मुड़ कर सुबह तकीन को गोया कह रही थी अल्लाह मुझे जज़ा खैर दे, मेरे बच्चे को छोड़ दिया। और आखिर तक जहां तक वो दिखाई दी वहां तक वो पीछे मुड़ कर देख रहे। बहरहाल वो तो चली गई। रात को सुबह तकीन सोया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए। ख्वाब में भी कौन आए? अल्लाह के नबी। कोई वक्त में नहीं आया, कोई साहबी नहीं आए, कोई बुजुर्ग नहीं आए, खुद अल्लाह के नबी ख्वाब में आए और कहा कि सुबह तकीन तूने एक बच्ची पर रहम किया, सुबह तकीन तूने एक जानवर पर रहम किया, अल्लाह तुझसे खुश हो गया, अल्लाह इसके इनाम के तौर पर तेरे खानदान में मजबूत और एक लंबी हुकूमत चलाई। और उसके बाद और उसके लोग आए, अल्लाह ने इनाम के तौर पर उसको इनाम के तौर पर इस जानवर को छोड़ने के ऊपर इतना बड़ा इनाम अता फरमाया। बड़ा और भी बहुत सारे वाक़ये हैं। मैं बस इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि भाई हमारा इकराम मुस्लिम में बच्चों पर शफकत किया जाए, बड़ों का एहतराम किया जाए और उनकी कदर की जाए। अल्लाह ताला का